हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं सुश्री अनमोल जाधव मध्य प्रदेश के इंदौर से, जिन्होंने 2023 में तीन तीन एग्जाम निकाले हैं। सबसे पहले एसबीआई पीओ, फिर उसके बाद सिडबी और लास्ट में रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ग्रेड बी एग्जाम निकाला है। आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। हाउ डिड शी प्रिपेयर, और ये कारनामा होता कैसे एक साल में तीन तीन एग्जाम निकालने का, उसके बारे में आज हम उनसे पूछेंगे, सीखेंगे। बिफोर दैट एक बार मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा अनमोल को कि इस उपलब्धि को पाने के लिए। आरबीआई का एग्जाम तो ठीक ही है, एक साल में तीन तीन एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। और मतलब इन दिस सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेट मी टेल यू दिस दैट दिस टाइम व्हेन द आरबीआई वाज देयर, तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था एंड माय प्रिपरेशन वाजंट देयर, तो आई हैड डिसाइडेड कि आई विल बी अपीयरिंग इन 2024। बट सर ने बहुत ज़्यादा मुझे पुश किया, लाइक नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक ही केप्ट पुशिंग मी। एंड आई वाज ऑलमोस्ट श्योर after each stage कि I'll have to appear in 2024, but he has supported like डिस्क्रिप्टिव तो ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो पुश किया है ना, दैट हैज हेल्प मी। लाइक अगर सर इतना इंसिस्ट नहीं करते तो मैं एग्जाम नहीं देने वाली थी इस बार। सो अ बिग थैंक यू टू हिम फॉर दिस। अगर मतलब हैड ही बीन नॉट देयर तो शायद नहीं हो पाता इस साल। तो सर थैंक यू सो मच। इतनी तारीफ करने के लिए अमाउंट पहुंच जाएगा अकाउंट में, ठीक है। चलो, विल स्टार्ट। सबसे पहले इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अबाउट योर बैकग्राउंड, योर स्कूलिंग, योर ग्रेजुएशन एटसेट्रा, प्लीज। Okay, so I'm Anmol Jadhav, and if I talk about myself, then I come from Indore, Madhya Pradesh. I completed my 10th and 12th from Indore itself. My schooling is done from there. Then I appeared in IIT JEE, and then in that I got the state government college, which was again in Indore. So I completed my graduation from SGS ITS Indore, and I was from the COVID batch. So our graduation got delayed to December 2020. So by December 2020, I got graduated. And if I talk about how RBI came into the picture, so since I was in fifth, sixth standard, I wanted to work in a sector which was related to helping people or working in a social sector. So because of that I wanted to take arts after my 10th standard, but I could not do that, and then I got into this JE and all. But then after, like in my second third year, I started preparing for UPSC. And meanwhile, as I was growing, I got to know that okay, my personality does not matches with what is needed for UPSC. And meanwhile, I also got to know about RBI grade B examination. So then, like, it was a mix of things which motivated me. I developed interest in the economics, and COVID was there. So we were also getting to know the role which finance sector plays for an economy. So all these things pushed me for RBI. And since my final year, I made my mind that I want to go for the RBI. And due to which I shifted, like I kept my focus only on one thing. But then I appeared in March, like in March 2021, there was the prelims exam, and that was my first attempt. And I did whatever I could to like to crack the exam, but unfortunately, I could not clear the prelims. I think I missed it by some 4 marks. Then again, I prepared for my second attempt. In my second attempt, I cleared the overall cutoff, but this time I missed the quant cutoff by point 0.5. And then in my third attempt, which I was planning to skip, and where I think in my third attempt, I comparatively put the least efforts for RBI, and I was least expecting. And this attempt, I was able to clear it. So this was about me and RBI till this point. ओके, बहुत ही जबरदस्त, लाइक अ रोलर कोस्टर जर्नी इट हैज बीन। सो Definitely. we'll talk about phase one preparation now, subject by subject. If you can tell which all sources did you follow, and to what extent did you follow those sources? Okay. So let's start with the quants. So like most of the people, मेरा भी quant अच्छा नहीं था बिल्कुल. I was very weak in maths as well. Quant struggled.
I started for quant with the R.S. Agrawal book. So for completing my basics of that particular subject, मैंने पहले पूरी R.S. Agrawal जो बुक होती है, I used to take one chapter at a time. पहले मैं उसके basics पढ़ती थी, what is the concept. After that, I used to solve examples and then I used to practice the questions from there. So in this way, in my first go, I completed R.S. Agrawal. So that was the basic step, but I did realize that it's a basic book and my exam needs more. So after that, I started practicing topic wise. So for topic wise practice, I used to use apps like Adda 247. In that, there used to be topic wise quizzes. So from there, I used to practice so that I get to know if I'm able to solve the questions in a time bound manner. Besides this, I also use sources like there used to be maths app जिसपे कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए ही इट वाज डिजाइन. तो वहां पे जैसे फ्री है या फिर लंच के बाद वॉक कर रहे हैं तो मैं 15-20 मिनट उसमें सॉल्व कर लेती थी, ऐसे ही ताकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज हो जाए. उसके बाद लेट्स से देयर आर शॉर्ट ट्रिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देन कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके शॉर्ट ट्रिक्स होती थी. तो जब भी मुझे लगता था कि ओके देयर आर सर्टेन टॉपिक्स इन व्हिच वी कैन गो थ्रू सर्टेन शॉर्ट ट्रिक्स, तो यूट्यूब से मैं सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स देखती थी. एंड उसके बाद फुल फ्लेजेड मॉक्स मतलब आई टुक अ लॉट ऑफ मॉक. फिर जब भी मुझे मॉक टेस्ट में लगता था कि मेरा कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक मैं उसका जाके वीडियो देख लेती थी और उस पे 100-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी. या फिर मुझे ऐसे लगता था कि ओके इन दिस टॉपिक मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, सो आई यूज टू solve like questions based on that particular step of that particular topic. But at the end of the day, mock test has remained like the key source which has helped me. And practice mock quality wise, I found it like one of the best sources. And मेरा जो prime source रहा है mock test के लिए वो practice mock ही रहा है. So this was my approach for quant section. Identifying the strengths and weaknesses has a very important role to play in the QRE section. So I also kept working on that. And secondly, मैंने जैसे पहले भी बताया, identifying the trends and working on those trends also helps up to certain extent. So these are the two things which helped me in the quant section. Now, if I talk about the reasoning section, so when I started the preparation, there used to be a grade up app. So what I did was that I took the printout of syllabus, like what are the topics in the reasoning syllabus. Then from grade up app, मैंने एक एक topic वहां से देखा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. फ्रॉम देयर ओनली आई सॉल्व लाइक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ईच टॉपिक फ्रॉम दैट ऐप, सो दैट माय बेसिक इज बिल्ट. और देयर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक इनपुट आउटपुट हो गया, जैसे तो लॉग्स हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया. तो इनके लिए मैंने सर्टेन यूट्यूब वीडियोस देख लिए थे. जैसे इनपुट आउटपुट के लिए तो आई जस्ट रैंडमली वॉच्ड इट. फॉर सिलोजिज्म्स मुझे मेरिट शाइन का जो एक सीरीज है इस पे वो बहुत अच्छा लगा था, तो फ्रॉम देयर आई वॉच्ड इट. फॉर क्रिटिकल रीजनिंग आई वॉच्ड मेरिट शाइन एंड हर्षल अग्रवाल सर की भी एक सीरीज है इस पे बेस्ड. सो आई वॉच दीज सोर्सेस. एंड अगेन अड्डा 247 की ब्यूटी मुझे वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हुआ करते थे. एंड like in limited time you had to solve the quiz, so my intention used to be okay today I'm solving the inequalities. So if yesterday I took let's say 3 minutes to solve all those questions, so today I have to take 2 minutes. So in this way मैंने अपने topics के base study की. म्यूट 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 हो गई हो. Okay, so yeah, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बार जब बेसिक्स क्लियर हो गए उसके बाद आई टुक डेली मॉक टेस्ट. एंड डेली मॉक टेस्ट के साथ साथ आई ऑल्सो यूज टू डू अनदर थिंग विच इज लेट्स से आई एम वीक इन पजल्स, मुझे पजल्स नहीं बन रहे हैं. सो मैं क्या करती थी कि फ्लोर बेस्ड पजल्स आई यूज टू गो. Puzzles maybe there are different varieties. So let's say there is floor based puzzle. So I used to solve 5 floor based puzzles. फिर I'll do this for let's say 3 days. फिर next 3 days के लिए I'll take sitting arrangement along with the blood relation वाला thing, and then I'll solve it for next 3 days. So for puzzles also I used to solve those puzzles for like I used to ensure I'm solving 20 to 25 puzzles. और मैं ऐसे साइकिल में चलाती थी कि puzzles रोज करनी है मतलब करनी है. For that again I use practice mock. टेक्स्ट बुक पे आपको पजल्स मिल जाते हैं. उसके बाद ऑन टेलीग्राम आई यूज टू फाइंड दिस अंकुश लांबा सर्स पजल बुक यूज टू बी देयर. देन गाइडली बंडल इज देयर जहाँ पे वो डेली टारगेट्स देते. तो फ्रॉम विच एवर सोर्स मुझे मिलता था मैं अपने वीक टॉपिक्स को अलग से टाइम देती थी. एंड फॉर रीजनिंग अगेन टेकिंग लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट, taking daily mock test, that
that has been there, like that has helped me. So this was my strategy for quant and reasoning. Now for English section, मेरा ये ठीक ठाक था English, तो बहुत ज़्यादा efforts मैंने अलग से नहीं put किए थे. For this, I used to read daily newspaper. Along with this, as I was very regular with the mock test. So अगर मेरा आज मैंने कोई मॉक टेस्ट लिया है और उसमें ग्रामर रिलेटेड आई हैव डन सम मिस्टेक्स, तो आई यूज्ड टू मेंटेन अ नोटबुक एंड उस नोटबुक में मैं अपने मिस्टेक्स नोट कर लेती थी कि ओके दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच आई हैव डन. एंड नेक्स्ट डे सपोज आई एम सिटिंग फॉर टेकिंग अ मॉक टेस्ट, सो उसके पहले आई यूज्ड टू गो थ्रू दोज मिस्टेक्स, सो एटलीस्ट आई एम नॉट रिपीटिंग दीज मिस्टेक्स. सो इन दिस वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉट एवर माइनर मिस्टेक्स विच आई वॉज मेकिंग वो फिल्टर होती गई, इम्प्रूव होती गई. एंड मेरे दिमाग में वो चीजें बैठ गई कि दीज आर द थिंग्स विच आई रिपीट, सो उनको मुझे कैसे इम्प्रूव करना है. फॉर लाइक से पैरा जम्बल्स, तो जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसके नीचे सॉल्यूशन वो आपको बताते हैं कि इसको कैसे अप्रोच करना है. तो कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो मैं उसको जाके देखती थी कि अच्छा ये वाला सेंटेंस है, इसको ऐसे कनेक्ट करना है, देन यू हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट सेंटेंसेस. So for this parajumble wala part, I approached like this. Same for the comprehension. I used to go and read the solutions that how they have approached. So everything happens, over a period of time. आप slowly उस चीज का grip develop करते हो. So this is how I approach for English. And करंट अफेयर्स थोड़ा-सा डरावना सेक्शन हुआ करता था. एंड मतलब पीपल हाउ पीपल अप्रोचेस, लोग अफेयर्स क्लाउड का एक साथ मंथली पीडीएफ करते हैं, बट मुझे वो 350-400 पेज देख के डर लगता था. तो मैं क्या करती थी, फॉर दिस अटेम्प्ट तो आई कुड नॉट रीड करंट अफेयर्स, बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माय जनरल स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज किया है करंट अफेयर्स के लिए, सो माय प्राइम सोर्स फॉर द करंट अफेयर्स वाज अफेयर्स क्लाउड, was the magazine source which I used. Besides this, I really enjoyed reading the आरबीआई वेबसाइट. तो मैं हर 2 दिन में एटलीस्ट एक बार जाके आरबीआई वेबसाइट देख लेती थी, वहां पे जाके नोटिफिकेशंस देख लेती थी, अगर कोई स्पीच है तो वो देख लेती थी. सो आरबीआई वेबसाइट वाज माय अनदर सोर्स. पीआईबी was another, PIB is also an important source, but I was not very regular with the PIB. तो सर जो भी लिंक पोस्ट करते थे मैं बस एक बार जाके रीड कर लेती थी कि चल क्या रहा है. एंड देन आई रियली एंजॉयड रीडिंग बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर. मतलब बहुत फन लगता था मुझे रीड करना न्यूज़पेपर. सो ये 4 चीजें मैं करती थी. नाउ इट माइट लुक कि बहुत ज्यादा करना होता है, बट इट्स ऑल मैनेजेबल. आई टेक लाइक आई टेल वन बाय वन मैंने कैसे किया ये सारी चीजें. तो लेट्स से अफेयर्स क्लाउड इज देयर एंड थोड़ा सा बोरिंग होता है, यू हैव टू रीड द डेटा एंड फैक्ट्स एंड ऑल. सो मैं सुबह उठती थी, सुबह आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश होता है, तो मैं सबसे पहले अफेयर्स क्लाउड का, टुडे इज 5th, सो मैं फोर्थ का अफेयर्स क्लाउड आता था वो उठाती थी और 3 बार रीड करती थी. सबसे पहली रीडिंग में आई यूज टू जस्ट गो थ्रू दैट एंड मैं देखती थी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब क्या क्या पढ़ना जरूरी है, बिकॉज कुछ चीजें एकदम बकवास होती हैं जिनको देखना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है. तो इन फर्स्ट राउंड आई यूज टू फिल्टर दोज थिंग्स कि करना क्या क्या है. फिर इन सेकेंड रीड जो जो मैंने किया हुआ है मैं उसको गो थ्रू करती थी और रटने की कोशिश करती थी कि हाँ मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए अब ये. एंड इन थर्ड राउंड मैं खुद से, जैसे किसी लेट से COP26 से रिलेटेड कोई मीट हुई है एंड उस पे न्यूज है, तो मैं अपने मन से बोलने की कोशिश करती थी पहले, या फिर एक नोटपैड पे छोटा छोटा पॉइंट्स लिख देती थी कि मुझे क्या क्या याद हो गया है, और मैं खुद से बोलती थी. एंड अगर मैंने एक दो चीजें मिस कर दी है तो वो मैं देख लेती थी. सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी कि 3 बार पढ़ लो. फिर नेक्स्ट डे क्या करती थी मैं कि आज लेट्स से टुडे 6, तो पहले 4 तारीख का बस एक बार गो थ्रू कर लेती थी और फिर मैं अगेन सेम अप्रोच यूज करती थी. एंड आई हैड दिस हैबिट ऑफ वॉकिंग आफ्टर लंच. तो जैसे मैंने कल का अफेयर्स क्लाउड रीड किया है तो उस पे क्विज भी आता था नेक्स्ट डे, तो मैं उसका क्विज दे देती थी ताकि मेरे दिमाग में बैठा रहे. और फिर जब भी मुझे टाइम मिलता था लेट्स से वीकेंड पे, तो एक बार जो आपने 5 दिन का 6 दिन का पढ़ा हुआ है उसको गो थ्रू कर लो. फिर एक बार 15 दिन में कर लो और एक बार 30 डेज में कर लो. जब एग्जाम आती है तो योर पेस इज एट नेक्स्ट लेवल. बट मुझे नहीं हो पाता था मुझसे एक साथ इतना सारा, तो इसलिए मैं रोज थोड़ा थोड़ा करती थी. एंड ये एक्टिविटी हार्डली लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 50 मिनट्स तक आ गई थी एंड इतना टाइम मैं दे पाती थी. सो दिस वाज माय अप्रोच फॉर कवरिंग द अफेयर्स क्लाउड. अभी आप कोई भी लाइक दिस गाइडलीज थंडरस्टॉर्म मैं सुन रही हूँ कि द क्वालिटी इज गुड, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं लाइक विच एवर सोर्स सूट्स यू. आप कोई एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं. देन पीआईबी कभी कभी अच्छे से हो पाता था, कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन द थिंग विद पीआईबी अगर आप रोज पढ़ते हो
तो सेम चीज़ रिपीट्स फॉर 2-3 डेज़। सो आपके दिमाग में एक एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कि चल क्या रहा है। तो सर जो भी पोस्ट करते थे, मैं जाके बस एक बार रीड कर लेती थी। तो वो एक्टिविटी ज़्यादा टाइम नहीं लेती थी, 15-20 मिनट लेती थी एंड न्यूज़पेपर बिज़नेस लाइन एज़ आई सेड बिज़नेस लाइन रोज़ पढ़ती थी मैं। तो वो भी पूरा नहीं पढ़ना होता है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट, सेकंड पेज जिस पे इफ देयर इज़ सम इम्पोर्टेंट न्यूज़, देन जो बीच में ऐसा सेक्शन होता है व्हिच टॉक्स अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज़ एंड अदर स्टफ व्हिच इज़ नॉट डायरेक्टली रेलेवेंट टू आवर एग्ज़ाम या फिर जिसका आरओई ज़्यादा नहीं है, मैं उसको पूरा स्किप कर देती थी। Then anything which is related to RBI or anything which is related to banking sector, if finance minister is saying something, or if any good article is there which is related to somehow to our finance or economic and social issues syllabus, so I used to go through those articles. If there is any news related to World Bank, IMF, so I used to read through those articles. So in this way मेरा न्यूज़ कवर हो जाता था एंड लाइक एक चीज़ अच्छी होती है जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो जो चीज़ आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, कल और परसों और आफ्टर 3 डेज़ आई माइट फाइंड इट इन अफेयर्स क्लाउड। 2 दिन पहले वो शायद पीआईबी में आया हुआ होगा, तो यू गेट अ पिक्चर। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स, यू हैव एन आइडिया दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड देन एज़ आई सेड आरबीआई वेबसाइट इतना बल्की नहीं होता है, अगर आप रोज़ पढ़ते हो तो शायद 3-4 दिन में आपको एक नोटिफ़िकेशन देखने को मिलता है। 15 दिन में आपको एक स्पीच देखने को मिलेगी, कभी-कभी वो भी नहीं आती और उसमें भी सारी स्पीचेज़ नहीं पढ़नी होती हैं। सो रोज़ आप आरबीआई वेबसाइट जाते हो बट हार्डली आई थिंक 2-3 दिन में आपको शायद आधा घंटा उसमें डिवोट करना पड़ता है। सो दैट इज़ हाउ आई अप्रोच द करंट अफेयर्स एंड इफ आई हैव टू टेल यू पीपल कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑल दीज़ एग्ज़ाम्स इज़ कि अगर आप बैंक एग्जाम भी लोगे ना, तो भी अभी सब लोग फेज़ 2 ओरिएंटेड हो रहे हैं। तो अभी एज़ द एग्जाम अभी नोटिफ़िकेशन वगैरह का कुछ नहीं पता है हमें। तो अभी आप लोग पीआईबी, आरबीआई नोटिफ़िकेशंस, न्यूज़पेपर पे ध्यान दो और अभी यू गाइज़ ट्राई टू फोकस ऑन द ब्रॉडर पिक्चर कि चल क्या रहा है। और जब नोटिफ़िकेशन आ जाता है ना, उसके बाद बस 3 महीने का कोई भी करंट अफेयर मैगज़ीन हो गया, आई प्रेफर्ड अफेयर्स क्लाउड, कोई भी 3 महीने का जो थोड़ा अच्छा मैगज़ीन है उसको रेफ़र करो, बस 3 महीने का वो करो। बट आई वुड से उसके बाद भी ना आप लोग स्कीम्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो, आरबीआई नोटिफ़िकेशंस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो और पीआईबी पे ज़्यादा फ़ोकस करो। इससे क्या होगा ना कि आप फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों को एक साथ अच्छे से कवर कर पाओगे। सो दिस इज़ हाउ नाउ वी नीड टू अप्रोच टू द करंट अफेयर्स सेक्शन बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स। ओके, तो जो की टेक अवेज हैं वो ये हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग शुड सीम लाइक फन और लंच के बाद आपको टहलना चाहिए. सो these are the two key takeaways from here. Now we'll move to phase two. Okay, so subject wise we'll talk about ESI first. ESI may be दो sections, objective and descriptive. So how did you tackle these sections? Okay, sir. Sir, if I'll talk about the objective section, so when I started my preparation, so मैंने सबसे पहले रमेश सिंह से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई कवर्ड दोज टॉपिक्स एंड साथ में I watched Mrunal's videos on those topics which are relevant to our syllabus because that helps a lot in building your base for both finance and ESI and that also helps you in reading the newspaper. So मैंने सबसे पहले वो अच्छे से कवर कर लिया. मैंने एक दो बार ही पढ़ा था रमेश सिंह, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा. But yeah, these are the two things which I did. Then when I started my preparation, so I went to the ministry's websites. वहाँ से I tried to make the notes of the schemes and all. But बहुत आउटडेटेड हो गए थे मेरे नोट्स, एक बार बनाए थे और एक चीज़ बुरी थी मेरे साथ कि मैं खुद के नोट्स बनाती थी, कभी वापस नहीं जाती थी उन पे, पता नहीं आई हैड सम समथिंग विद माय ओन नोट्स। तो फिर फॉर स्कीम सेक्शन आई हैड दिस क्रैकग्रेडवी सब्सक्रिप्शन इन 2022, तो मैंने मेजरली उनका जो कंपाइलेशन था स्कीम्स का, मैं वहाँ से स्कीम्स देखती थी। और जैसे पीआईबी में कोई स्कीम पीआईबी में जो स्कीम्स आ रहे हैं, स्पेशली दो स्कीम्स व्हिच आर इन न्यूज़ फॉर लेट्स से लास्ट 6 मंथ्स और उनसे रिलेटेड डेटा आता ही जा रहा है, तो वो वाले डेटा को हाइलाइट करके आप उन्हीं पीडीएफ्स में आप एक जगह लिख सकते हो या फिर आप प्रिंट आउट लेके उसी में उस स्कीम में जाके ऐड कर सकते हो, सो दैट लेटर ऑन व्हेन यू आर रीडिंग सो इट बिकम्स ईजी। सो फॉर स्कीम्स मेरा यही था, 2 सोर्सेस, एक कंपाइलेशन मैंने यूज़ किया था और दूसरा पीआईबी में जो भी स्कीम्स आती थी, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा आता था या न्यूज़पेपर में कोई भी स्कीम्स आती थी, मैं वहीं पे ऐड ऑन कर देती थी एंड आई केप्ट इट सिंपल लाइक बहुत ज़्यादा मैंने इसके लिए ये नहीं किया था कि मैं 10-10 जगह जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं जाके मिनिस्ट्री की वेबसाइट से कर लूँ। मैंने
किया भी, कोशिश भी की। विकासपीडिया इज़ अनदर गुड सोर्स व्हिच यू कैन फॉलो फॉर द स्कीम्स, क्योंकि वहाँ पे भी आपको मेजर डिटेल्स मिल जाती हैं स्कीम्स की। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि जब आप साइट पे पढ़ने जाते हो तो यू गेट ओवरव्हेल्म्ड और आपको फोमो होने लगता है कि अरे ये चीज़ आ गई तो मैं ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ। मेरे साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी कोई भी चीज़ करने में। तो इनिशियली मैंने ये किया, बट देन आई लिमिटेड माय एफर्ट्स एंड कंपाइलेशन प्लस पीआईबी, दीज़ 2 सोर्सेस। यू गाइस कैन आल्सो लाइक सर ने बताया है कौन-कौन से डायमेंशंस पे फोकस करना है, तो आप कोई भी स्कीम अगर आप मिनिस्ट्री से भी जाते हो, जस्ट फोकस ऑन दोज़ 6-7 पॉइंट्स, लाइक कब लॉन्च हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री से है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या uh, it central and state sector वाला स्कीम। उसके बाद who are the major beneficiaries, what is the outlay, sunset year कब है, what are the major objectives, ये सारी चीजें you check, these are the basics, and then you can check if there is any relevant PIB related data to that. For reports again, आप important reports हैं उनका एक लिस्ट बना लो। what I used to do was that कि अफेयर्स क्लाउड मंथली है, तो वहां से एक महीना खत्म हो गया जैसे, तो वहाँ पे whatever reports are there which are relevant to phase 2 based on the previous year papers and ESI syllabus. So I used to make a list of those reports and then जाके न्यूज़पेपर से कुछ चीज़ें अफेयर्स क्लाउड में मिल जाती है। देन आई यूज्ड टू सर्च लाइक लेट्स से सम रिपोर्ट इज देयर, सो आई यूज्ड टू सर्च विद यूपीएससी, ताकि यूपीएससी के वेबसाइट पे जो भी डेटा है मुझे वो मिल जाए। एंड देन आई यूज्ड टू चेक इट फ्रॉम 2-3 न्यूज़पेपर्स कि कुछ इम्पोर्टेंट है क्या उससे। सो दीज वर द थिंग्स व्हिच आई फॉलोड फॉर द रिपोर्ट्स। सो ईएसआई में इतना ही होता है, पीआईबी कर लो, reports and this schemes. These are the dynamic sections. For PIB मैंने mostly सर के links follow किए थे, but end में actually I joined my job and 3-4 months before RB there were a lot of things going on like interviews, TVs, medical and everything. So I did not have time to study anything. So उस टाइम पे मैंने बस 3 महीने का ब्रजेश मोहन सर का compilation किया था, but previously I did put efforts for the PIB also. सर के links जा जाके पढ़ती थी मैं। So these things I used for covering the dynamic section. For static section, रमेश सिंह एंड मृणाल सर के वीडियोस एंड कभी-कभी जो विवेक सर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ को लेके लाइक सम हॉट टॉपिक इज़ देयर एंड न्यूज़ में बार-बार आ रहा है, तो वो उस टॉपिक को सिम्प्लीफाई करके एक नोट के फॉर्म में दे देते थे। तो कभी-कभी जाके उनके टेलीग्राम चैनल पे मैं अंडरस्टैंड कर लेती थी कि ओके, दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक। So these were my sources for completing the dynamic sector section and sorry हाँ डायनामिक सेक्शन एंड स्टैटिक का रमेश सिंह बता ही दिया मैंने। एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आई जस्ट रिलाइड ऑन WLH ग्रुप। वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आते थे आई यूज टू गूगल इट, आई यूज टू गो थ्रू like the material which I had, I used to go through the any newspaper, relevant newspaper article related to that subject, and I used to write the wholesome answer. मेरा अप्रोच यही रहता था कि आई राइट माई आंसर्स इन सच अ वे दैट आई एम एबल टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स विच आई कैन इन दैट आंसर। एंड और कुछ नहीं किया मैंने डिस्क्रिप्टिव पे के लिए। वॉट एवर सर पोस्टेड आई ट्राई टू राइट द आंसर्स फॉर दैट दोज क्वेश्चंस एंड आई रिवाइज देम इन द एंड। उसके अलावा in newspaper I had this approach that okay, if there is an article related to आर सब्जेक्ट, तो वहां से क्या मैं एक दो पॉइंट्स ले सकती हूँ विच कैन बी यूज्ड इन द क्वेश्चन। सो आई जस्ट नोटेड दोज पॉइंट्स एंड आई लिमिटेड माय डिस्क्रिप्टिव सेक्शन टू दैट ओनली। सो दिस वाज माय अप्रोच फॉर द ESI section. Okay, and now we'll move to FM. Okay, so for finance and management, when I started my finance preparation, so I started with the Bharti V Pathak, but it was too bulky and I could not keep up with that. So then I moved to the, I do have summary sheets which are available in the Telegram groups. And for finance, uh, मुझे ये समझ आ रहा था वहाँ से, एक तो बेसिक्स क्लियर हो रहे थे, दूसरा ये समझ आ रहा था पढ़ना कहाँ तक है। सो आई रेड द समरी शीट्स एंड आई सप्लीमेंटेड दोज विद द इन्वेस्टोपीडिया, बिकॉज इन इन्वेस्टोपीडिया यू गेट वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ योर फाइनेंस टॉपिक्स। एंड देन यूट्यूब पे जैसे देयर इज अ चैनल नोन एज असेट योगी चैनल, सो he has also explained some topics which are related to derivatives, swaps really well. सो यही रहता था, एडुटैप से पहले बेसिक्स क्लियर कर लो, नहीं समझ आ रहा है तो इन्वेस्टोपीडिया पे चले जाओ, और अगर और भी डाउट है तो फिर यूट्यूब से जाके गूगल कर लो।
So these were the things which I followed for the section. Same for the management, like EduTap summary sheets were for me, they were more than enough, and I supplemented it with this managementstudyguide.com, and I revised it. Like in management and FM, I think the syllabus is very limited, especially the static syllabus is very limited, and the focus should be on ek bar, let it take time, don't rush, try to understand the core concept of anything which you are reading, because nowadays questions वैसे ही आ रहे हैं. So understand the core concept. अगर आपको एक source से नहीं समझ आ रहा है, you can Google, you can use YouTube, you can use ask your friends, understand the concept and revise it multiple times. So that was the approach which I used for the static finance and management. Management के लिए EduTap plus managementstudyguide.com. These were the two prime sources. डिस्क्रिप्टिव वही। हाँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए तो मैंने डब्ल्यूएलएच के अलावा कुछ भी नहीं किया था, मतलब जो क्वेश्चंस आते थे उनके आंसर्स प्रिपेयर करके वही रट के चली गई थी एग्जाम में। ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश में यू हैव स्कोर्ड 60 और इस बार या 60 एक अच्छा स्कोर है, काफी अच्छा स्कोर है, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है इंग्लिश में और डिस्क्रिप्टिव में भी। तो इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच थी एज सच? सर, बिफोर स्टार्टिंग द इंग्लिश पहले एक जो बेसिक देखना होता है कि इफ यू आर राइटिंग एन एसे, व्हाट कैन बी द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द एसे, लाइक बेसिकली इट्स एसेज देयर। अभी हमने कोट्स की बात की थी थोड़े टाइम पहले, सो यू कैन ईदर स्टार्ट इट विद कोट और सम डेटा पॉइंट, एंड देन यू कैन एनालाइज इट ऑन डिफरेंट डायमेंशंस। तो पहले तो ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बेसिक समझ लिया कि लिखने का तरीका क्या होता है। वंस दैट इज डन, देन मैंने जब पहली बार मेरा प्रिपरेशन शुरू किया था, लाइक सिंस माय फाइनल ईयर, सो वी हैड अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स। तो हम लोग हर वीकेंड, हमारा ये रूल होता था कि हम हर वीकेंड एक टॉपिक देते थे, ऐसे का, प्रेसी का और कॉम्प्रिहेंशन का, हम तीनों लिखते थे और एक दूसरे का चेक करते थे। सो वी कंटिन्यूड दिस फॉर हेलो। लाइक 6-7 months। देन पार्ट अगेन में थोड़ा लाइक हम लोगों ने फिर जब मीटिंग डब्ल्यू आओ एल ना। एच भी ज्वाइन किया था, सो इन दैट पार्ट में ऑल्सो आना हम थोड़ा लोग लेट हो वीकली जाना। कोशिश करते थे कि ऑल्टरनेट वीक्स पे ऐसे प्रेसी ठीक कुछ है भी ठीक। लिखें। सो विथ माय फ्रेंड्स आई इंश्योर्ड दैट मैं कर रहा हूँ फोन ऑन फ्री में। वीकेंड्स, मतलब ब्रेक्स होते रहते थे, बट ऑन वीकेंड्स आई ट्राई टू राइट डिस्क्रिप्टिव एंड कवरिंग ऑल दीज 3 सेक्शंस, एंड एक दूसरे की चेकिंग करके वी यूज टू अवॉर्ड द मार्क्स। सो जो फीडबैक मिलता था फ्रेंड से उस पे काम किया। सो बीइंग रेगुलर विद डिस्क्रिप्टिव, उतना नहीं बट जितना हो पा रहा है, मतलब एटलीस्ट हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम महीने में 2 बार डिस्क्रिप्टिव का पूरा-पूरा एक बार अटेम्प्ट कर लें, या हर वीक कुछ एक चीज़ कर लें। सो दैट हैज़ हेल्प्ड मी समहाउ, एंड कंटीन्यूअसली रीडिंग द न्यूज़पेपर, और आप जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हो दैट आल्सो हेल्प्स यू विद द कंटेंट। ठीक है। Interview maybe you have scored 58, and that is a good score again this time, because this time above 60, above 70, there are only a few people. Last time तो थे काफी ज्यादा लोग। 58 is a very good score. तो कैसा था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड आपको क्या लगा इंटरव्यू से बाहर आके कि अब तो हो ही गया है कि संसार पूरा खत्म हो गया है या आबाद हो गया है? Actually, मैं जैसी interview generally has been my strength, and I've scored pretty good in most of the interviews which I have taken. So काफी expectations थी मेरी RBI interview से, because once you clear the phase 2, then you don't want to go back to home. You want to clear it. लेकिन जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आई, my world shattered. I was like, I didn't perform it well. और मुझे लगा कि नहीं, अब 2024 वाला अटेम्प्ट अब देना ही पड़ेगा, एंड माय पेरेंट्स वर वेटिंग आउटसाइड एंड दे आस्क्ड कि कैसा हुआ इंटरव्यू। आई सेड इट्स गॉन, इट डिडंट गो वेल एट ऑल, एंड लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड खत्म कर दें यहीं पे स्टोरी। सो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। मैंने इंटरव्यू देने के बाद एक्चुअली इन द मॉर्निंग आई गॉट लेट फॉर द इंटरव्यू, सो आई कुड नॉट इवन लुक एट द बिल्डिंग अराउंड प्रॉपर्ली। मैंने सोचा था आके देखूंगी मैं अच्छे से, बट मेरा मूड इतना ज्यादा खराब हो गया था इंटरव्यू के बाद कि मैं सीधे बाहर निकली, एंड लाइक आई जस्ट फिनिश माय लंच समहाउ एंड आई जस्ट केम आउट ऑफ माय बिल्डिंग। मैंने कुछ नहीं देखा, इतना ज्यादा मेरा मूड खराब था। मैंने अतुल सर से भी बात की थी, शायद मैंने उनको बताया कि बहुत खराब हो गया है इंटरव्यू, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। इवन मैं जिस दिन लाइक इंटरव्यू के नेक्स्ट डे मेरी सुबह अपने आप 4 बजे नींद खुल गई थी डर के कि मैंने सब खराब कर लिया है। मुझे लग रहा था इफ आई कुड गेट अनदर चांस एंड इफ आई कुड आंसर दोज़ क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। सो दिस इज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट इट। अरे कुछ नहीं, बट आई रेड योर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट ऑल्सो एंड इट वाज अ डिसेंट वन।
So, there are some people who have this tendency to underestimate their efforts and वो अपने आप को कम ही जज करते हैं तो that was the case क्योंकि मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा उसके बाद जब तुमने बोला कि अरे अब तो हो गया खत्म हो गया ये हो गया तो फिर I asked for the transcript I went through each and every word of that transcript and it was a decent interview so I told you as well you will be getting above 55 or around that and you got 58 so how did you prepare for the interview. Okay. So सबसे पहले I started with the functions and working PDF of RPA, which is like बाइबल फॉर आरबीआई इंटरव्यू सो मेरा यही था कि मुझे 10 दिन में सबसे पहले ये कवर करनी है सो आई कवर्ड दैट थरली बट एक चीज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज दैट सम थिंग्स आर आउटडेटेड इन दैट फंक्शंस एंड वर्किंग पीरियड जैसे एसटीएफ वगैरह के बारे में मेंशन नहीं है सो आप ये भी कर सकते हैं जिन्हें आगे प्रिपेयर करना है कि इन आरबीआई वेबसाइट ऑल्सो हर एक फंक्शन को लेके दे हैव सेक्शन ऑन द आरबीआई वेबसाइट तो इफ यू वांट टू रीड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो आप वो भी कर सकते हैं कि उन सेक्शंस में जाके रीड कर लें और यू कैन रीड द पीडीएफ सो सबसे पहले मैंने वही बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया वर्किंग वाला पीडीएफ आई रेड इट 5 to 6 times ताकि हर एक चीज टिप्स पे आ जाए फिंगर टिप्स पे आ जाए सो दैट वाज वन थिंग सेकेंडली आरबीआई वेबसाइट में आई ट्राइड कि मैं कम से कम 5-6 महीने के जो नोटिफिकेशंस हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई कवर देम प्रॉपरली सो आई वेंट थ्रू देम उसके बाद 3-4 मंथ्स के स्पीचेस मिनिमम 3-4 मंथ्स के स्पीचेस वन हैज टू कवर so I covered those speeches from the RBI website. You don't need to cover all the speeches, but the speeches which are given by the RBI governor or deputy governor or the speeches which are related to our syllabus or somehow the questions can come from those speeches in your interview. You have to look at those speeches. So I covered those speeches. So this was about the RBI, what one has to cover related to RBI. After that, I used to read the newspaper daily. Now I had really less time, so I just read business line newspaper, and my approach remained the same, which I used to do it for the phase one and phase two. So reading the daily newspaper was another thing. Besides this, as I was working in SIDBI right now, so I read each and everything related to SIDBI. I read its website thoroughly. I covered like all the functions which are performed by it. I read the balance sheet of SIDBI very thoroughly. I read its annual report. Besides this, as I was working as a credit analyst, I was working in the direct finance sector. So I did like one thing which since the day I joined SEDBI, I was reading and doing everything very, very properly with this mindset that if just in case if I have to appear in the interview this year, then I need to be really well prepared. And one of the thing which forms the basic base for it is your current work profile. So even if I was asked to read any circular, if I was even allotted a small thing to cover, I used to do it very properly, and even if I'm not able to understand something, I used to ask to my seniors about it. I used to Google about it. So even when I'm at my workplace, and even if I'm analyzing a balance sheet, I used to read about its ratios. वहाँ पे time नहीं मिलता था, मैं note down करके घर ले आती थी, and then I used to read about those things. So covering about your current organization, all the functions as well, your current work profile. Like a lot of us have this tendency that our current job is, causing us stress and it is taking us away from our dream job, but whatever hours that we are spending at our job, we should do it in such a way that we get a thorough understanding of whatever we are doing. So this is what I did. Besides this, the hobbies, like I did mention two hobbies, so I prepared about those hobbies, about the famous things of my city, I prepared about that. And then any hot topic which is like you can go through the study IQ, that hot topics video series if you get time. So that is another thing which can be done. And in achievements, if you are writing anything, then knowing a basic background about that. Like I in achievements, I wrote that one of my projects, final year projects, is it's put for the patent. So it was a technical project. It was related to my engineering, but as I mentioned it there, so I ensured that I read the reports which I presented during my college. So I have a basic idea about that. If I'm writing about the any national competition in which I was like I presented my college. So I just read basics about that.
so that if any question comes from that, I'm able to handle that question. So these are the major areas which I try to cover. Besides this, I did a small course which was based on the working capital and term loans for MSMEs as I was working in the SIDB. But then I would say that wasn't a very good decision because I completed that course like in a very short period, and even till the interview, I was a bit scared that if there's too deep questions on this topic, then I might not be able to answer those questions properly. And I was with this fear like till the D day. So I would suggest this that you should go with the certifications only if you have completed the basics properly. And whatever you are writing in your bio data, you should write it only if you have prepared those things directly, because what happens is that like out of this FOMO that we need to fill everything in the bio data, we write a lot of things, but by the time our interview comes, we realize this, okay, we are not well prepared for this topic, we are not well prepared for that topic. So that shouldn't happen. Write limited things, but make sure that whatever you are writing, you should be thoroughly prepared for that. Like at least you should be knowing all the basic things about that. If you're not able to answer very deep questions on that, it's okay, but knowing basics and a bit more about it is really important. So if I have to sum up about RBI, if you're working about your current work profile and about yourself, which includes your plays, hobbies, achievements, all these things form the prime pillars of your interview preparation. Okay. So the gist is that you should read about the famous things of your city. So which all famous things are there in your city? Sarafa? Yeah. हाँ सराफा और Yeah, Sarafa is there. Then it is known for the cleanliness. Then Chappan is there. Then this Holkar Empire. It is very famous. इस बार So तो इंदौर नहीं रहा ना भोपाल जीत गया ना नहीं 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 नहीं. We seven time also we came first. okay so like you have cleared three exams on a roll over there so like which all factors you think were there कि एक ही बार में मतलब ऐसा क्या किया तुमने कि भाई 6 महीने 8 महीने में बस एक के बाद एक के बाद एक एग्जाम निकलते गए और आई वुड से जैसे पहली चीज तो आप हमेशा बात करते हो सैचुरेशन पॉइंट की. सेकेंडली जब मैंने पहली बार आरबीआई दिया था एट दैट टाइम मेरे दिमाग में बस आरबीआई था. आई डिडंट गो फॉर दीज पीओ एग्जाम्स एंड ऑल. आई वाज अ बिट ईगोइस्टिक कि नहीं यार मैं तो सीधे जाके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाऊंगी. बट पहली बार नहीं हुआ, यू गेट शटर्ड कि नहीं हुआ. देन यू समहाउ वर्क एंड चलो सेकेंड टाइम तो निकाल ही लेंगे ऐसा लगता है. बट देन जब आपका एक दो बार नहीं होता है तो फिर थोड़ा आपको रियलिटी भी हिट करती है कि नहीं यार, लाइक द टाइम इज गोइंग एंड like it's important that you at least get financially strong and you get something. So ये चीज मुझे भी हिट की when I could not clear it for the second time straight. And there was a point जब मैं इतनी ज्यादा anxious हो गई थी, like I never filled the clerical forms and all, but in that rush I ended up like filling the SBA clerical form as well, though I ended up clearing that as well. But मतलब वो मेरे कभी पार्ट ऑफ प्लान में नहीं रहा था. बट व्हेन यू फेल सो मेनी टाइम्स या फिर जब टाइम होने लगता है तब दैट एंजाइटी कम्स इनटू प्ले एंड वो आपको पुश करती है कि नहीं करना है. और फिर मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब भी मैंने खुद को एक टाइमलाइन दिया था कि अगर इतने टाइम तक नहीं होता है देन आई विल टेक अ बैकअप एंड आई विल कीप प्रिपेयरिंग फॉर दिस. सो जब मेरा सेकेंड टाइम नहीं हुआ था, प्रीलिम्स मेरा रह गया था. जब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था आई वाज वेरी शटर्ड. जब सेकंड टाइम नहीं हुआ आई वाज प्रैक्टिकल. तो मैंने आरबीआई आरआरबी पीओ के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए. मैं एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट देती थी. एंड बट आई वाज एज़ आई ऑलरेडी सेड मेरा बहुत वीक था क्वांट, एंड इन आरआरबी पीओ यू जस्ट गेट क्वांट एंड रीजनिंग. सो आई मिस्ड इट बाय 0.25 मतलब आफ्टर इवन प्रिपेयरिंग अ लॉट. देन आई अपीयर्ड इन आईबीपीएस पीओ एंड मतलब इसमें भी बहुत and even like I ended up scoring some 86 out of 100 in prelims, जो कि prelims के हिसाब से मतलब given the paper it's a very good score. But then I was under a lot of pressure that IBPS PO is the easiest exam and it has a lot of vacancies, तो मुझे clear करना है. I somehow come under the pressure in the mains exam, and I did clear the mains, but I knew that I didn't do well and I'll be somehow somewhere in the boundary. So then again, interview and all, I scored decent in the interview, but then I missed it
by some 0.31 or something. And then SBI PO I took, it's a very tough exam, नहीं हो पाएगा, तो एकदम फ्री माइंडसेट से गई एंड समहाउ प्री हो गया, मेंस हो गया एंड देन आई क्लियर्ड इट विद ऑल इंडिया रैंक 27। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मतलब द एग्जाम व्हिच आई थॉट कि नहीं हो सकता, वो मतलब वो क्लियर हो रहा है, दैट टू विद सच अ गुड रैंक। तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया, देन सिट भी आया, तो सिट भी अगेन नहीं दे रही थी, मैं नहीं दे रही थी कि 100 वैकेंसीज़ है, लास्ट ईयर भी मैंने नहीं फिल किया था इसी चक्कर में कि आई एम नॉट दैट टैलेंटेड कि मैं इतने कम वैकेंसी वाला एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगी। बट देन अगेन माय फ्रेंड्स पुश्ड मी एंड जाके मैंने बस दे दिया कि दे देते हैं जाके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी प्रेशर एंड देन somehow I cleared the written exam, and then for interview I prepared really well for the SITB interview, and then SITB also happened. But इन सारी चीज़ों में RBI took a back seat, और जब तक RBI आया it was already a gap of 3-4 months जब मैंने RBI का कुछ भी ऐसे मतलब consciously touch नहीं किया था। But then I think whatever the efforts which I cumulatively put in all these years, that somehow helped, and मतलब I really don't know. Even today, I think कि how RBI happened this year, but it just happened. तो मतलब टफ एग्जाम पकड़ो और बस दे दो जाके। नहीं मतलब सी दिस थिंग आई विल से कि जब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, जब आप खुद को बहुत ज़्यादा उस प्रेशर में रख देते हो कि नहीं मुझे तो ये करना ही है, अब नहीं हुआ तो लाइक इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, तो वो हिंडर करती है वो चीज़, मतलब दिस आई विल से, क्योंकि इवन इन माय प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स ऑफ आरबीआई ऐसा नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन कम थी या मतलब मैंने कुछ मिस कर दिया था, नहीं। और मेरा मिस भी काफ़ी क्लोज़, मतलब क्लोज़ कॉल से मिस हुआ था। बट इन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स द डिफरेंस वाज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के साथ एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया था मैंने। और इस बार मुझे पता था कि यार कुछ नहीं पढ़ा है, मैं अफेयर्स क्लाउड नहीं पढ़ के गई थी। मैं इस बार प्रीलिम्स का मैंने कैसे तैयारी की थी सर को भी पता है। बस मॉक टेस्ट कुछ दिए थे और वो भी एनालाइज़ नहीं किए थे। जीए में ऑल द ग्रुप मेंबर्स नो मेरे मार्क्स नहीं आते थे क्योंकि मैंने जीए पढ़ा ही नहीं हुआ था। और मुझे पता था कि नहीं निकलेगा इस बार, तो मैंने बस जाके दे दिया, बट एज़ आई वाज़ स्ट्रेस फ्री, तो समहाउ मेरी प्रीवियस प्रिपरेशन एंड जो मैंने इतना क्यूआरई प्रैक्टिस किया था वो चीज़ें हेल्प की एंड आई वाज़ एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। फिर अगेन मेंस में ये चीज़ हुई कि यार 10 दिन ही है, पढ़ाई क्या ही करूँगी? तो मैंने बस ये सोचा कि डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट हो जाएगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। Right? Just check descriptive and थोड़ा बहुत CIB and RBI notifications, and whenever the questions came कि यार कोई क्वेश्चन आया, जैसे इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वर वेरी ट्रिकी, बट आई डिडंट गेट एंग्शियस क्योंकि मुझे पता था कि वैसे ही आई डिडंट रीड एनीथिंग, सो व्हाटएवर आई न्यू आई ट्राइड टू राइट द बेस्ट आंसर्स आउट ऑफ इट, सो दैट थिंग हेल्प मी इन सेलिंग। और अगर मैं बाकी एग्जाम्स की बात करूँ, एसबीआई आई टुक इट एज अ वेरी टफ एग्जाम कि मुझसे नहीं होगा, सो आई वाज समहाउ रिलैक्स्ड कि यार नहीं दे पाऊंगी। इन सेट भी आई हैड दिस माइंडसेट इन आईबीपीएस पीओ, इन लास्ट अटेम्प्ट मैं बिना पढ़े इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, और मेरा शायद 1 मार्क से भी कम से मिस हुआ था वो लास्ट ईयर, एंड ऐसे ही गई थी मैं। तो इस बार मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था खुद का कि दिस इज़ द जॉब व्हिच आई कैन ग्रैब एंड यही है मेरा बैकअप। सो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया मेरे ऊपर मेंस में कि आई कुड नॉट, मतलब सामने ईज़ी क्वेश्चन है बट मैं उसको गलत रीड कर रही थी। And I messed up everything. So despite working a lot for it, I could not clear it. And same thing happened in my previous 2 attempts of RBA. So I would say taking a bit less stress about the exams is also one of the key factors जो हम miss out कर जाते हैं. कामनेस एंड रिलैक्स होके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। Yeah. सो व्हाट हैज बीन योर रूटीन, मतलब वर्किंग एस्पिरेंट होने के नाते किस हिसाब से पढ़ा करती थी, और क्या एडवाइस है वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए जो टाइम क्रंच की वजह से बहुत ज्यादा इशू में रहते हैं। ओके। तो जैसे आई जॉइन द जॉब, तो एक चीज़ पहले मैंने खुद को ये बोला था कि आई विल लिमिट द नंबर ऑफ एग्जाम्स आई एम गिविंग, मतलब अब ये नहीं करूँगी कि मैं हर एग्जाम के पीछे भागूँगी, बस आरबीआई ही गोल रखूँगी बिकॉज़ आई वाज़ देयर इन सिटबी, तो आरबीआई ही मैंने सोचा था। तो एक चीज़ तो अभी एग्जाम थोड़ा दूर है, तो अगर आप 3 घंटे भी रोज़ देते हैं for consistently for let's say next 4 months, so even that is a good amount of time which you can give for the exam. If I talk about my routine, so मैं सुबह रोज 5 बजे उठ जाती थी, 5 बजे से 8 बजे तक, 7:50 तक आई यूज टू
रीड डेली। उसके बाद थोड़ा-सा वर्कआउट करके आई यूज्ड टू लीव फॉर माय ऑफिस। देन ऑफिस से आने के बाद अगेन मैं वर्कआउट करती थी, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा ये इश्यू था कि इफ आई कम एंड इफ आई सिट इन द ऑन द काउच, फिर बहुत मुश्किल हो जाता था उठना और पढ़ना, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हो, बहुत स्ट्रेस्ड होते हो। तो मैं यही करती थी कि आते से है ना, सबसे पहले 5-10 मिनट के अंदर वर्कआउट शुरू करना है, क्योंकि उससे एक तो आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ जाते हो एंड यू फील दैट रश ऑफ एनर्जी। तो मैं पहले थोड़ा 15-20 मिनट वर्कआउट करती थी, फिर आधा घंटा, पौन घंटा पढ़ाई कर लेती थी, फिर डिनर का टाइम हो जाता था। तो डिनर करने के बाद आई हैड दिस हैबिट ऑफ वर्किंग फुल टाइम एस्पिरेंट में, तो आप आराम से इतना टाइम दे सकते हो, अभी मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती थी कि जैसे डॉक्टर अमित लाल हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे वो फाइनेंस और मैनेजमेंट के वीडियोज़ पोस्ट करते रहते हैं, तो मैं सीधे नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं उनके वीडियोज़ देख लेती थी। उसके बाद अनूप जिंदल चैनल पे देयर यूज्ड टू बी आरबीआई 247 सीरीज़, जिसमें दीज़ पीपल यूज्ड टू कवर द आरबीआई नोटिफिकेशंस, और एक मनीष सर की सीरीज़ होती थी, जिसमें वो पीआईबी कवर करते थे। उसके बाद एडुटैप के भी सीरीज़ होते थे, जिसमें एक तो स्कीम्स कवर होती थी, दूसरा आरबीआई नोटिफिकेशंस कवर होते थे। तो जब भी मैं ऐसा टाइम होता था ना कि मेरा मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द टाइम, तो मैं ये वीडियोज़ देख लेती थी। उससे क्या होता है ना कि वन्स यू वॉच द वीडियो, या तो आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है या आप पढ़ने वाले हो, तो समहाउ आपका एक बेस रेडी हो जाता है, या फिर वो वीडियोज़ रीइंफोर्स कर देते हैं। तो मैं ये चीज़ करती थी, और फिर रात में 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, जितना टाइम मैं दे पाती थी, मतलब जब तक इतना ना हो जाए कि हाँ, अब सोना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, एज़ अ वर्किंग एस्पिरेंट, जो मैंने एक चीज़ हमेशा खुद के लिए ध्यान रखी है कि मैं अपनी स्लीप स्लीप को हमेशा इनफ इम्पोर्टेंस देती थी। अ, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं हम 4 घंटे सो के पढ़ लेते हैं, हम 6 घंटे सो के पढ़ लेते हैं, मेरे साथ नहीं होता था। जब तक मेरा मतलब मैं 6 थ लाइक साढ़े 6 घंटे, 7 घंटे ना सो लूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। वंस इन अ वीक इट्स ओके टू स्लीप लेस, बट मुझे इतनी नींद लगती थी। तो मैं इतना सोने के बाद ही पढ़ती थी। मेरा यही रहता था, इफ आई एम रीडिंग लेस बट आई नीड टू रीड इट विथ फुल कंसंट्रेशन। सो दिस इज़ अनदर थिंग व्हिच आई ऑलवेज़ टूक केयर कि मैं प्रॉपर स्लीप ले रही हूँ। हाँ, जब एग्ज़ाम एकदम पास आ जाता है, जब 15-20 दिन ही बचे हैं, तब तो पता नहीं कहाँ से यू गेट दैट एनर्जी, कहाँ से वो एंग्ज़ायटी आती है कि मैं कभी रात में नहीं पढ़ पाती हूँ, बट जब आरबीआई का फेज़ 2 था, तो मैंने रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक भी पढ़ाई की है। मतलब जितना मैं पढ़ पाती थी, उतना पढ़ती थी। So for all the working aspirants, I would say कि सबसे पहले डिसिप्लिन योर बॉडी। आई थिंक वी गो फॉर द पढ़ाई एंड ऑल का प्लान बनाते हैं, बट मैं जब भी एग्ज़ाम आता था, तो सबसे पहले यही चीज़ करती थी कि मैं अपनी बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करूँ कि एक रूटीन में वो ढल जाए। कि ना इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने घंटे, मतलब इतने घंटे आपको सिटिंग की आदत होनी चाहिए, इतने टाइम आपको फ़ोन दूर रखने की आदत होनी चाहिए। पहले खुद को एक उस रूटीन में ढालना इम्पोर्टेंट है, और इट्स टफ, मतलब इट्स टफ स्पेशली विद जॉब, इट बिकम्स वेरी टफ बिकॉज़ अ, आपकी सोशल लाइफ आपको कट डाउन करनी पड़ती है। यू हैव टू से नो टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको थोड़ा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। इन इन बोथ ऑफिस यू नीड टू बी मोर एफिशिएंट, ताकि you can finish your responsibilities, your work on time, and then you can devote the time for your studies। तो आपको हर जगह एफिशिएंसी दिखानी पड़ती है। तो थोड़ा टफ है, बट डिसिप्लिन होके अगर आप अभी 3 घंटे 4 घंटे भी रोज़ दे पा रहे हैं, इवन 3 घंटे दे रहे हैं, तो भी अभी आप ऐसे दो, व्हेन योर एग्ज़ाम कम्स, पास में आती है जब, प्री को 15-20 दिन है, मेंस को 15-20 दिन है, तब आप फुल टू एकदम अच्छे से खींच सकते हो। अभी थोड़ा-थोड़ा भी करोगे तो भी इट विल वर्क आउट। ठीक है, तो चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करना है और विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी यू कैन डू इट, या दैट इज़ वन थिंग एंड ठीक है। बेस्ट मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक यू हैव टोल्ड ऑलरेडी। फेज़ 2 के लिए कुछ मॉक टेस्ट दिया था क्या? फेज़ 2 के लिए जो डब्ल्यूएलएच पे सर ने जो मॉक टेस्ट जो दिए हुआ। थे, मैंने बस वही दिए थे। आई थिंक नो मॉक टेस्ट कैन मैच दैट लेवल, और मुझे लगता नहीं मार्केट में अभी कोई ऐसा मॉक टेस्ट है जो फेज़ 2 के लेवल को मैच कर सकता है। सो ओनली डब्ल्यूएलएच मॉक टेस्ट आई टूक। ओके। जो भी बेस्ट 2-3 सोर्सेज़, चैनल्स, यूट्यूब चैनल सीरीज़, कुछ भी जो तुमको लगता है कि ये तो एटलीस्ट करना चाहिए फॉलो अ तो। देखो, सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि सबके समझने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। पर्सनली मैंने सिर्फ़ डब्ल्यूएलएच पे मैं मेनली रिलाई करती थी फॉर द पीआईबी डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा आई वाज़ अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट ग्रुप, तो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ पॉजिटिव हेल्दी कॉम्पिटिशन, और एक मतलब
आपको एक पीयर ग्रुप मिल जाता है जिसमें यू कैन डिस्कस द थिंग्स एंड ऑल, तो मैंने यही फॉलो किया। बीच-बीच में मैं जैसे ब्रजेश सर के चैनल पे कुछ-कुछ चीज़ें सिम्प्लीफाई होके आती थी, तो मैं कभी-कभी वो पढ़ लेती थी। कभी-कभी विवेक सिंह सर का चैनल देख लेती थी, बट आई वुड से कि आप कोई भी 1-2 चैनल फॉलो कर लो। फॉर मी इट वाज़ डब्ल्यूएलएच। बहुत जगह 10 जगह जाओगे ना तो chaos क्रिएट हो जाता है। यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, 10 लोग 10 चीज़ें बताएँगे, आपको नहीं समझ आएगा। आप 10 डायरेक्शन में भागते रह जाओगे, लेकिन स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाओगे चीज़ें। इसलिए लिमिट योर सोर्सेस। यूट्यूब पे भी इवन सी आई वाज़ द पर्सन जिसको वीडियोज़ देख के ज़्यादा समझ नहीं आता था। मैंने कभी क्वांट रीज़निंग के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देखे, मुझे खुद से करके चीज़ें समझ आती थी। फाइनेंस मैनेजमेंट में भी मेरा यही रहता था कि मुझे खुद से जब मैं रीड करती थी तब मुझे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती थी रादर देन गोइंग ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब मैं तभी यूज़ करती थी जब मेरा ऐसा टाइम होता था कि पढ़ना ज़रूरी है लेकिन मन नहीं लग रहा है। मतलब मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि आई कैन गो ओपन माय लैपटॉप एंड कंसंट्रेट। सो इन सच केसेस मैंने जो बताया, मैं अनुज जिंदल और एड्यूटैप का स्कीम्स रैंडमली कोई उठा ली, वो देख ली। ये चीज़ मैं फॉलो करती थी। बट देन यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेस। लाइक फॉर टेलीग्राम चैनल आई वुड से डब्ल्यूएलएच इज़ देयर। फॉर यूट्यूब आप कोई भी कोचिंग का देखो, हर कोचिंग की हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी होती है, तो आप वो जाके सिलेक्टिवली देख सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप सिर्फ़ वही वाली सीरीज़ देख सकते हो। तो मैंने यही किया था। तो मेरा अगला क्वेश्चन भी ऑलरेडी कवर हो ही गया, योर टेक ऑन कोचिंग वाला। तो अ और कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो? See, if I'll have to say on coachings, so अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, स्पेशली फॉर आरबीआई ग्रेड बी, नो मैटर विथ विच कोचिंग यू गो, द मटेरियल्स विल हेल्प यू अप टू सर्टेन एक्सटेंट। बट सबसे बड़ा इशू ये होता है कोचिंग्स का कि इन ऑर्डर टू क्लेम दैट दे हैव कवर्ड एवरीथिंग अंडर द सन, वो अपने मटेरियल में सब कुछ डंप कर देते हैं बहुत। तो आखिरी में इट्स योर कॉल कि आपको उसको रीड कहाँ तक करना है, वो आपको ही समझना पड़ेगा। देन देयर आर सर्टेन कोचिंग्स जो चीज़ें सिम्प्लीफाई तो करते हैं, बट दे कीप pouring a lots of content. Then there are certain coachings they want to provide let's say short material. So in certain cases ये हो जाता है कि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत होती है। तो आपको कोई और सोर्स यूज़ करना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ यू आर यूजिंग द कोचिंग, आपको खुद का दिमाग एंड पीवाईक्यू पेपर्स यूज़ करने पड़ेंगे, ये देखने के लिए कि पढ़ना कितना है। अगर आप इवन जब मैंने पीआईबी कंपाइलेशन यूज़ किया था, तो उसमें ये एफर्ट मुझे लगाना पड़ता था चेक करने के लिए कि यार फेज़ 2 के लिए कौन-कौन सी चीज़ें रेलेवेंट है, मैं बस उतना ही पढूँ। So even like if you are going with the coaching, you will always have to use your brain कि आपको कितना पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करना है। यू कैन नॉट लाइक टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी कोर्स एंड ये नहीं कर सकते आप कि अच्छा ठीक है इसने 10-15 पीडीएफ दिए है, मैं सारा पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दिस डज नॉट वर्क्स। यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स ऑन योर ओन। अगर हम डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल ले तो एथिक्स पे एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि you have to design the policy for ethics. Now in coaching material you can understand कि okay this is ethics, but if you have to write a policy तो वो आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो दिमाग कब लगा पाओगे आप, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। देखो डायरेक्टली चीजें नहीं मिलती हैं, बट इफ यू रीड न्यूज़पेपर, आप सर्विस के बारे में पढ़ते हो, आप जब पीआईबी पढ़ते हो तो देयर आर आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपका दिमाग खोलती हैं in interconnecting the things. So using your own brain and supplementing it with a bit of original sources is going to help. ओके, अ फ्यू फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम। क्या एडवाइस देंगे आप एस्पिरेंट्स को कि ये ये चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ अपनी तरफ से? Okay. तो सबसे पहली चीज तो इन माय एक्सपीरियंस आई फील दैट द आरबी एग्जाम इज अ बिट अनसर्टेन, लाइक each step comes with its own you know hurdles, but I would say prelims काफी ही डाइसी फेस है इसका। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में कट ऑफ ही निकालना है बस एंड इट्स इजी, एंड इन दिस अ लॉट ऑफ पीपल एंड अप नेग्लेक्टिंग द फेज वन। लेकिन वो जो कट ऑफ, इवन आप 200 में से आपको जो 60-65 लाना है, इवन वहां तक पहुंचने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्यूआरई प्रैक्टिस। सम पीपल आर नेचुरली गुड एट इट, सम आर नॉट। सो आई वुड से क्यूआरई को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से क्यूआरई प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज what happens is that a lot of serious aspirants get eliminated in phase 1 itself. So इससे ये चीज तो होती है कि once you clear phase 1, phase 2
थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है कंपैरेटिवली करना। तो फेज़ 1 पे अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी चीज़ व्हिच आई हैव सीन इज़ दैट कि स्टूडेंट्स गेट ओवरव्हेलम और वो प्रोपोर्शनली चीज़ों को टाइम देना नहीं दे पाते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईएसआई में इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने लगते हैं कि दे समहाउ इग्नोर द डिस्क्रिप्टिव और सम पीपल डू सो मच ऑफ डिस्क्रिप्टिव कि वो बाकी सेक्शंस को इग्नोर करते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम का हर एक सेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट और आपको हर सेक्शन में प्रोपोर्शनल टाइम देना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है कि स्कीम्स पे रिसर्च चालू कर दी तो मुझे पीएचडी करनी है स्कीम्स पे, ये रिपोर्ट कर ली तो मुझे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स इसको पूरा पढ़ना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जाके मैं एक-एक चीज़ करूँगा या करूँगी, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए वेयर यू नीड टू लिमिट योरसेल्फ इन एवरीथिंग। तो हर जो सेक्शन है एग्ज़ाम का, उसको प्रोपोर्शनेट टाइम दो, हर चीज़ की प्रॉपर इज़्ज़त करो, that will help you in getting a decent score in all the subjects. That is second thing. Third thing, limiting your sources and revising it multiple times. Don't come into that FOMO कि ये वाला कोचिंग अच्छा है या वो वाला चैनल अच्छा है। कुछ लोग तो अभी ये भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि हमने प्राइवेट ग्रुप में कर दिया है तो मतलब अब नहीं नहीं हो पाएगा और समथिंग लाइक दैट। तो किसी भी चीज़ का फोमो देखो कोई एक चीज़ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है। आपका जो डिसिप्लिन है ना और आप कितना रिवाइज़ करते हो, कितना वाइज़ली पढ़ते हो, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी सोर्सेज़ फॉलो कर रहे हैं जस्ट स्टिक टू दोज़ सोर्सेज़, उनको अच्छे से फॉलो करो। एंड सेकंडली दोज़ पीपल हू आर फुल टाइम एस्पिरेंट्स एंड आपके 2-3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, तो आई वुड से कि यू कैन आल्सो स्टार्ट लुकिंग फॉर बैकअप ऑप्शंस। मतलब डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम बट परस्यूइंग साइमल्टेनियसली बैकअप ऑप्शंस विल हेल्प यू क्योंकि अभी आपका बेस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप जॉब के साथ कर सकते हो प्रिपरेशन। एंड सेकेंडली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी एंड दैट प्रेशर दैट विल रिड्यूस कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब नथिंग इज वर्किंग आउट, दैट थिंग विल ईज। सो फॉर दोज पीपल आई हैव दिस थिंग। एंड सेकेंडली हर तरह के एग्जाम के पीछे नहीं भागना है। मैंने बस एक ही बार नाबार्ड दिया था, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि इसका सिलेबस थोड़ा अलग है, तो फिर मैंने बस क्यूआरई एग्जाम्स और आरबीआई पे ही फोकस किया एंड दैट समहाउ पेड मी वेल। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू से टू द एस्पिरेंट्स। एंड थोड़ा लक है इस एग्जाम में, नो डाउट। तो खुद पे बहुत हार्श नहीं होना है, काम करते रहो बट थोड़ा डिटैच्ड भी रहना इम्पोर्टेंट है रिजल्ट से। ओके। और ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट ग्रुप मिस हो गया है तो कुछ नहीं होने वाला है इधर। एज सच प्राइवेट ग्रुप में बस एक ही चीज है, आपका जो कंसिस्टेंसी है ना वो हम लोग क्योंकि डेली क्वेश्चन डलेगा, डेली वैल्यूएट होगा और सेम क्वेश्चन मेन चैनल पे डाल हाँ, रहे हैं। और अब तो सेम क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप पे चेक कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसी ग्रुप में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट और बिलीव इन द प्रोसेस, यही हैं चीजें। अब हम ओपन कर देते हैं सबके लिए, अगर किसी को कुछ पूछना है। ऑल्दो सेशन रिकॉर्ड होने से पहले भी कुछ लोग पूछ चुके हैं, बट स्टिल द हाउस द फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और तब तक कुछ लोगों ने टेक्स्ट किया था तो आग्निक ने लास्ट टाइम, ओके, आई थिंक वो मैसेज कहाँ गए। अच्छा, नीरज पूछ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 88 पढ़ना है क्या मैम एसबीआई इंटरव्यू के लिए। नीरज इज नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, तो इरफान इरफान वाज आस्किंग, अभी तो डिलीट हो गया है इधर से शायद, कि ये जो रिपोर्ट्स हैं, पहले तो ईएसआई स्टैटिक पे ही वाज आस्किंग कि किस लेवल तक करना चाहिए, और उनका शायद थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है एंड ही सेड दैट ही हैज एनफ, लाइक उन्होंने काफी पढ़ा है ऑलरेडी इकोनॉमी। तो एज सच क्या फिर से स्टैटिक करने की जरूरत है? दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। और दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है या ट्रेंड्स, वो बैंकिंग वाली है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस, तो इन सब रिपोर्ट्स को किस हिसाब से नोट्स बनाएं और या समरी पढ़ें या क्या करें? ये दो क्वेश्चन। ओके, आई वुड से कि देखो द पर्पस ऑफ रीडिंग ईएसआई स्टैटिक इज कि आपका एक बार बेसिक्स आपको समझ आ जाए कि चीजें हैं क्या। तो अगर आपका स्टैटिक क्लियर है देन नो नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू कैन स्किप दैट। और अगर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि बस रिविजिट करने की जरूरत है तो यू कैन जस्ट डू दैट, अदरवाइज पूरा स्टैटिक फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंडली फॉर रिपोर्ट्स तो आई वुड से कि
आप न्यूज़पेपर में जो भी रिपोर्ट्स के बारे में आ रहे हैं, आप वो पढ़ लो। उसके बाद लेट्स से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स है, पूरा ऑनेस्टली मैंने भी कभी नहीं पढ़ा है, तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ लो और जैसे आप या तो किसी यूपीएससी कोचिंग जैसे विजन आईएएस है, वहाँ से देख सकते हो और फिर लग रहा है तो एक बार एज़ आई सेड अनुज जिंदल एंड एडिट का मुझे अच्छा लगा था जो वीडियो सीरीज़ होता है, तो ये लोग भी रिपोर्ट्स कवर करते हैं, तो आप इनके एक बार वीडियोज़ देख सकते हो। सो दिस वुड बी द वे कि बस समरी कर लो, न्यूज़पेपर से देख लो एंड दिस शुड सफाइस। ओके। और आग्निक, योर व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड ना, वो डिलीट हो गया है, तो कैन यू रीटाइप इट? अगर वो क्वेरी ऑलरेडी मतलब आंसर नहीं है मेरे हिसाब से, रूटीन से रिलेटेड यू आर आस्किंग, और वो कुछ हो गया था। व्हाट शुड बी द डेली रूटीन? ओके, सो व्हाट यू यूज्ड टू डू व्हेन यू वर नॉट वर्किंग एक्चुअली? अच्छा, ओके। जब मैं नॉन वर्किंग थी सो मैं हमेशा मतलब सुबह पढ़ पाती थी। तो मेरा हमेशा 3-3 घंटे का शेड्यूल ब्रेकडाउन होता था। अगेन सुबह 5 बजे उठ के मैं 8 बजे तक पढ़ाई कर लेती थी। फिर थोड़ा वर्कआउट वगैरह करके 9 बजे मतलब आफ्टर टेकिंग बाथ एंड ऑल मैं 9 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मेरा एक स्लॉट होता था 9 से 12 बजे तक का। फिर उसके बाद मैं लंच वगैरह करती थी। उसके बाद थोड़ा-सा वॉक करके और एक नैप लेती थी। फिर मैं वापस से मतलब 3 साढ़े 3 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक पढ़ती थी। फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेके अगेन मैं 8:30 तक पढ़ती थी। फिर डिनर करके आई यूज्ड टू स्टॉप स्टडिंग। तो ये मेरा शेड्यूल होता था और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो टफ चीज़ें हैं या फिर जो थोड़ा टाइम लेती हैं तो अफ़ेयर्स क्लाउड मैं सुबह-सुबह पढ़ लेती थी क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग होता था करना और बहुत मेरे दिमाग पे ज़ोर आता था उसको करने में, तो मैं उसको सुबह-सुबह ही निपटा देती थी कि मुसीबत सुबह-सुबह ही खत्म हो जानी चाहिए। फिर जैसे ये पढ़ने के बाद मैं क्या करती थी कि 1 घंटा में अफ़ेयर्स क्लाउड हो गया है, अब 2 घंटे बचे हैं, तो उसमें मैं फ़ाइनेंस 1 घंटा जैसे फ़ाइनेंस पढ़ लिया, उसके बाद में मैं 1 घंटा जैसे क्यूआरई हो गया कल कुछ टेस्ट दिया था उसका एनालिसिस करना है तो वो कर लेती थी। या फिर जैसे मैनेजमेंट इज़ अ ईज़ी सेक्शन आप पढ़-पढ़ के थक गए हो, अभी दिमाग थोड़ा थका हुआ है, तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज़ करना चाहते हो तो मैं वो 1 घंटे में कर लेती थी। फिर जैसे मैं 9 बजे वापस बैठ रही हूँ, तो मेरे अंदर अभी थोड़ी-सी एनर्जी है। तो मैं जो टफ क्वेश्चन्स हैं जैसे क्वांट हो गया, रीज़निंग हो गया, थोड़ा-सा टफ लगता है, तो मैं उनको जब मेरा दिमाग थोड़ा-सा फ्रेश है उसको तब करती थी। फिर जैसे स्लोली थकने लग जाती थी पढ़ते-पढ़ते, 1 डेढ़ घंटा हो गया तो फिर जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है मुझे रिवाइज़ करना है, स्टैटिक पार्ट हो गया या स्कीम्स हो गया जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है अब मैं वैसा कर लेती थी। और फिर दोपहर में मैं मॉक टेस्ट देती थी यूजुअली जब मैं उठती थी सो के तो फिर मैं फ्रेश होती थी। दिमाग अच्छा रहता था, तो फिर मैं मॉक टेस्ट दे देती थी और जब मेरा डे एंड होने वाला होता था, उस टाइम मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी क्योंकि वो थोड़ा-सा आप थक भी रहे हो, तो एंडिंग अ डे ऑन अ गुड नोट काइंड ऑफ थिंग मैं न्यूज़पेपर पढ़ के एंड आई यूज्ड टू एंड माय डे और उसके बाद मैं है ना ऐसे अपनी एक डायरी मेंटेन करती थी। उसमें मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे करके एक चार्ट बनाती थी और उसमें मैं हर चीज़ का एक स्लॉट देती थी कि एफएम मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक उसके बाद मैनेजमेंट मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, न्यूज़पेपर करना है, आरबीआई वेबसाइट विज़िट करना है, क्वांट रीज़निंग ऐसे करके मैं 7-8 चीज़ें लिखती थी और जैसे-जैसे मेरा वो होता जाता था, जैसे अफ़ेयर्स क्लाउड हो गया मैं उसको टिक कर देती थी, न्यूज़पेपर हो गया उसको टिक कर दिया, मैनेजमेंट हो गया उसको टिक कर दिया। तो उससे क्या होता है ना एट द एंड ऑफ द डे यू गेट टू नो कि आपने जो प्लान किया है, वो आप कितना कर पा रहे हो एंड अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा खुद के लिए ले लिया है, तो आप उसको थोड़ा रिड्यूस कर लो। अगर लग रहा है कि आप और कर सकते हो यू कैन एट सर्टेन थिंग्स तो इससे आपको एक ट्रैकिंग भी करने में मिलती है कि आप सच में पढ़ाई कर रहे हो या आप बस लैपटॉप खोल के बैठ जाते हो और साइड में आप बस फ़ोन स्क्रॉल करके टाइम पास कर रहे हो। सो दिस आल्सो हेल्प्स इन सेल्फ एनालाइजिंग। ओके। फरवरी में इंटरिम बजट आ रहा है, तो हाउ मतलब टू मच, टू व्हाट डेप्थ शुड रीड दैट देखो डॉक्यूमेंट? बजट जो फाइनल बजट होता है मतलब दिस ईयर द स्टोरी इज डिफरेंट बट जनरली तो बजट का मेरा यही अप्रोच रहता था कि बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसको पूरा वर्ड टू वर्ड प्रॉपर्ली पढ़ना है और दूसरी चीज ये होती है कि जो पीआईबी में एक समरी आ रही है वो कर लो आई थिंक दीज टू थिंग्स आर मोर देन इनफ सो यही मेरा अप्रोच रहता था बजट के लिए। ठीक है। प्रणव इज आस्किंग आर माई साइकोमेट्रिक टेस्ट
of the same pattern in SBI and RBI? Do they have similar questions? I appeared in SBI psychometric yesterday. Will that be helpful in RBI? देखो, जब मैं लास्ट ईयर मैंने अपीयर किया था एसबीआई पीओ के साइकोमेट्रिक टेस्ट में, सो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था एज़ कम्पेयर टू द टाइम व्हिच शुड बी अलॉटेड टू द साइकोमेट्रिक टेस्ट, और हम लोग वापस जा पा रहे थे क्वेश्चंस पे। आई डोंट नो इस साल कैसे उन्होंने प्लान किया है, बट मोर और लेस दे चेक द सेम थिंग्स। सो जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है वो मोर और लेस सेम ही रहता है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन चिल अबाउट दैट। चलो, तब और कोई है नहीं क्वेश्चन आई थिंक, और इनको पूछना था उन्होंने पहले पूछ लिया होगा। सो दैट वुड बी इट। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर कि आप आई, आपने आपकी स्ट्रेटजी शेयर करी। अ, और बहुत सारे लोगों को पुश भी मिलेगा कि ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर तैयारी करी थी, बट द थिंग इज इस बार उस लेवल की तैयारी नहीं भी हो पाई, तो ऐसा नहीं है, हार्ड वर्क पेज ऑफ। यही इसका जो मेन आज का हमारा अ, सीख है, नैतिक शिक्षा हमारी तरफ से यही है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। और ऐसा नहीं है, बहुत बार लोग डिसहार्टन हो जाते हैं, तो वही है, एक तरफ लगे रहें, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहें, और जितना आप कर सकते हैं करें। बहुत ज़्यादा खुद को पुश ना करें, रिलैक्स रहना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपना फिजिकली मेंटली आप सही रहें और तैयारी करते रहें। यही इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मैडम मनमोल जाधव को धन्यवाद देता हूँ कि वो आज के इस सेशन में आई, हमारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और